please welcome Sir and also address this August gathering. Thank you, ma'am. Over to you, Chanda ma'am. ओके, आज हमारे मुख्य अतिथि नवदीप जोशी जी मेरे कमेटी के सभी सदस्य विभिन्न कॉलेजों से जुड़े हुए मेरे सहयोगी और विद्यार्थीगण। मैं चंदा सागर एनेबलिंग यूनिट मिरांडा हाउस कॉलेज की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम इंटरनेशनल योगा डे के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। सर की व्यस्तता मेरे से 1 घंटा उनसे निकलवाना बहुत चैलेंजिंग लग रहा था अंत में, लेकिन उन्होंने मेरे लिए वो 1 घंटे का वक्त निकाला है। मैं सर के लिए इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अंततः मेरे लिए समय निकाला जो कि मीडिया के लिए था। नवदीप जोशी जी से परिचित कराने के लिए, उनका परिचय देने के लिए मैं सुरभि मैम को बुलाती हूँ कि वो आए और सर के परिचय के साथ सभी को अवगत कराएं। सुरभि। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Uh, okay, introducing Sir is actually an honor for me because Sir has been a versatile character, having not only achieved the best in education, but his all works, including workshops, and he's also been recipient of different awards. I would like to start Sir's introduction with the name of the book, that is वस्त्र योग के लिए कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य निर्देश, नाद योग ध्यान, सामाजिक उत्थान और प्रकृति चिकित्सा द्वारा ग्राम विकास. Am I right, sir? जी जी। Okay. Thank you, sir. It's very interesting book and I would like to read this. Now moving back to sir's qualification and education, sir has done his BSc and has also done MA in yoga from Gurukul Kulkangri University and PhD also in Nadi Yoga. Sir, when Sir was pursuing his PhD, his work was on Nadi Yoga, and he had done his PhD under Professor Trilok Chand. And moving on to a number of workshops and camps which he has organized, and Sir has been very active in conducting workshops not only in IIT Delhi and ONGC, GAIL, but everywhere, including educational institutes also. And Sir's list of awards consists of Yoga Awardee in 2013 by International Naturopathy Organization, Yogacharya of the Year in 2014 by Bharat Nirman, Special Invited Member in the Committee of International Yoga Festival of 2018 Rishikesh, organized by Ministry of Tourism, Government of Uttarakhand. He has also been recipient of national and international conference of 2001 to 2017 as a guest lecturer and chairman, and is the second and has received second Icon Award 2019 by Yoga Lovers Trust Delhi in 2019. He is a recipient of Yoga Shiromani Award of the Decade by International Yoga Guru at Pullamam Hotel on 26 December 2019. Sir has also done a number of TV and radio shows, including on DD News, Aaj Tak, All India Radio, Himalaya News, to name a few. So I would not take much a time. Rather, I think, sir, the way sir would make us practice in itself would speak about sir's work. Sir, it's an honor and a pleasure to have you here amongst us. And thank you so much for taking out your precious time for all of us. Thank you, sir. I hope on this International Yoga Day we would learn something new and our students will certainly benefit it. Hoping for the best, sir. Thank you, sir.
Over to you, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सुरभि मैम। एंड आपका ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। कुछ कार्य होता है, वो कार्य करते रहते हैं, आप सब लोग बुलाते हैं तो वो काम चलता रहता है। सबसे पहले इंटरनेशनल योग डे जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लक्षिता इनेबल यूनिट्स ऑफ मिरिंडा हाउस जिन्होंने मुझे बुलाया, और उसको बुलाने की जो कड़ी हैं डॉक्टर चंद्रा सागर मैम, तो मुझे बार बार फ़ोन करके कह रही थी आपको मेरे साथ जुड़ना है। और पिछले बार भी आप जुड़े थे, मैंने कहा बिल्कुल, जो हम सोचते हैं वो ज़रूर होता है। और उनके इस प्रयास से मेरे लिए बहुत एक अंदर से अच्छी अनुभूति है कि मैं दोबारा से मिरिंडा हाउस की ये लक्षिता यूनिट इनेबल्ड यूनिट्स के साथ जुड़ पाया। और जो भी ईश्वर ने कुछ दिया है उसको मैं आपके सामने रखूँगा। साथ में ये इसके जो अभी कुछ और लोग भी जो कमेटी के हैं, जो फैकल्टी मेंबर हैं और प्रिंसिपल मैम हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के कारण ही ये जो एक हमारी इनेबल यूनिट्स है, जो हमारी एक फैमिली है, उस फैमिली के साथ बात करके मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। हम पिछले बार से अभी तक कोरोना के उस महामारी के साथ में लड़ रहे हैं। बहुत कई बार बहुत दुख का भी अनुभव होता है। हमारे अपने लोग जो हमारे अपने थे, लोग चले गए, बहुत सारे लोग वापस आए। लेकिन एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि जिन्होंने अपना आहार विहार, जीवन शैली, योग, ध्यान, इसको बनाए रखा और जिन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, वो हमारे आसपास है। दुख की घड़ी भी है, क्योंकि जो जाता है वो तो वापस नहीं आता है। लेकिन हमें कुछ सीखने का भी क्रम जुड़ा है, और वो ये है कि हमने प्रकृति और योग को समन्वय करना पड़ेगा। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि योग बहुत अच्छा है। हमें अगर नहीं आता है तो हमें उसको सीखना पड़ेगा। अगर सीखने के बाद क्या अनुभव हमें हो रहा है, उस अनुभव में मालूम चल जाता है कि हमने योग को महसूस किया या नहीं किया। और मैं समझता हूं कि क्योंकि आप लोग बहुत एक्टिव हैं, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कुछ ना कुछ या बहुत कुछ आप लोग करते होंगे। तो जो त्योहार होता है, कोई होली, दीपावली, ईद, ऐसे अनेक त्योहार हम लोग मनाते हैं। लेकिन ये त्योहार है आपका, शरीर का, मन का, आत्मा का, यानी कि मैं कौन हूं, उसको जानने का। और ये इस कोरोना महामारी ने हमें सिखा दिया है। जिस शरीर के कारण हम अपने को अहंकारी समझते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्रीम पाउडर लगा के बार बार शरीर की उस खूबसूरती को देखने के प्रयास करते हैं, या उसको हम सोचते हैं कि वही प्रेजेंटेशन का। जबकि योग की जो साइंस है, तो योग का जो विज्ञान है, वो कहता है ये जो दृश्य जगत है, ये जो दिखाई देने वाला शरीर है, ये तो 5% है। और इसीलिए अगर हम सिर्फ इसी के लिए ही काम करते हैं
तो वो नहीं पा पाते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हम उस ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं जिसको हम नाद मेडिटेशन बोलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो शरीर है इसके साथ में हमारे अंदर, इसके अंदर 4 शरीर और हैं। इसके अंदर एक है प्राणमय शरीर। अब हम लोग इसमें, मेरा व्याख्यान तो है लेकिन हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जिससे मुझे समझ में आएगा कि भाई आप लोग कितना समझे, और वो ज़्यादा अच्छा होगा। वो आज की एक सक्सेसफुल वर्कशॉप होगी हमारी, तो हम लोग बातचीत करेंगे कि हाँ मुझे ये नहीं समझ में आया। तो जो इसके अंदर का शरीर है वो है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब होता है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी कहाँ है? क्या हमें दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। महसूस हो रही है? हाँ महसूस हो रही है। कैसे? कि हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, हमें थकावट नहीं होती, और जब थकावट होती इसका मतलब एनर्जी कम हो गई। क्या हो गया इसका मतलब? हमारा शरीर थक गया। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारी फिजिकल बॉडी कभी नहीं थक सकती। अगर एनर्जी बॉडी बनी रहेगी तो ये बॉडी कभी थक नहीं सकती। लेकिन हर किसी का आना जाना होता है, यानी कि हमारे लिए दिन और रात बनाए हैं। दिन में हम काम करेंगे, रात में सोएंगे। तो इसीलिए रात को सोना क्यों है या आराम क्यों करना है? क्योंकि जो दिन भर में हमने एनर्जी खत्म करी है वो एनर्जी को हम वापस ले लें, वापस प्राप्त कर लें, और दूसरे दिन फिर हम काम में जुट जाए। यही तो योग है, और यही काम हम लोग करते हैं। अगर हमारी नींद अच्छी हो जाती है, अगर हम ध्यान करना सीख जाते हैं, अगर हम योग की कुछ योग आसन प्राणायाम ये सब करने लगते हैं, तो हमारी को नींद भी भरपूर आती है और हमारी पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है अगर नींद आती है। तो ध्यान, नींद, रिलैक्सेशन ये सब किसका नाम है? बॉडी को रिपेयर करने का, बॉडी को शांत करने का, बॉडी के जो सारे सिस्टम है वो दोबारा से पुनर्जागरण करने लगे। तो इसे प्राणमय कोश, प्राणायाम के द्वारा हम उसको बढ़ाते हैं। इसके अंदर आता है मनोमय कोश, माइंड बॉडी। माइंड बॉडी को हम कैसे समझेंगे? क्या है माइंड बॉडी? माइंड बॉडी मन है आपका, जो आपके पकड़ में आता नहीं है, किसी के पकड़ में नहीं आता हो। अच्छे अच्छे मन के कारण जो है जो कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो मन चंचल है, और मन चंचल है तो फिर मन को रोकने के लिए, मन को साधने के लिए भी तो कुछ बना है, और मन को साधने के लिए जो बना है वही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग की ऐसी अनेक टेक्निक, अनेक विधियां जिसके द्वारा हम मन को रोकते हैं। तो ये मन को क्यों रोकना है? क्या करेंगे मन को रोक के? मन को रोक के हम किसी भी काम में अपना कंसंट्रेशन करेंगे, फोकस करेंगे, जिससे क्या होगा? इससे हमारा एक सांसारिक जगत जो है वो बढ़ेगा, और दूसरा आपका आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल भी आप बढ़ोगे, और आप जो संसार में हो वो भी बढ़ोगे।
उसके आगे आता है इंटेलेक्चुअल बॉडी, विज्ञानमय कोश। वो क्या है? अब ये जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए वही बना है। माइंड दो तरह से कंट्रोल होता है, और हमें मन को सर्वेंट बनाना सीख लिया हमने मन को, तो मन आपके लिए सब कुछ दे देगा आपको। अगर आप मन के सर्वेंट बन गए, यानी कि मन को मालिक बना लिया, तो वह सब कुछ आपसे ले लेगा। फिर भी इसको पकड़ना मुश्किल तो है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसकी उच्च स्थिति में आपका मन कंट्रोल हो जाता है, आप शांत हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो सब कुछ। उसी के आगे जो मन को कंट्रोल कर रहा है वो क्या है? ऊपर इंटेलेक्चुअल बॉडी। तो इसको मैं इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितना हम संस्कार, कुछ तो हमारे प्रारब्ध है, हमारे जन्मों के संस्कार है, और उस जन्म के संस्कार के कारण हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं भी मिलता, कुछ मिलता है। लेकिन जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारा कर्म योग है, उसके कारण हमें कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन हम अपनी जगह बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो जो बुद्धि है, आपके सलाहकार कौन है, आप कहाँ सत्संग करते हैं, आप टीवी में देख के क्या निगेटिव चीजों को ले रहे हैं, यूट्यूब में देख के टीवी, तो ये जो बुद्धि है वो इंटेलेक्चुअल बॉडी है आपकी। तो उस बुद्धि को कंट्रोल करने के, बुद्धि के कारण जो आपकी चेतना है, उस चेतना को हायर कॉन्शियसनेस बनाने के लिए जो काम होता है वो योग है। योग की अनेक अनेक विधाएं हैं, और मैं एकदम आपको, जितने लोग यहाँ बने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम नाद मेडिटेशन की आज प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग ध्यान में जा पाएंगे, सभी लोग। और तब फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इतनी बात हमें क्या समझ में आई? अगर इतनी बात हमें समझ में आई तो मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं। यस सर। ठीक। इसके ऊपर एक और बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लिस बॉडी, जिसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। अब ये जो आनंदमय कोश होता है, वो आनंदमय कोश क्या है कि किसी भी तरह की स्वाद, किसी भी तरह का आनंद आपके सेंस के द्वारा, आपके, हाँ क्वेश्चन आंसर करेंगे बाद में। आप सब लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, जो लोग हैंड खड़े रेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन आंसर जब आप करेंगे, लेकिन ये मैं उसको बाद आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, प्रैक्टिकल के बाद फिर हम बिल्कुल पूछें। तो जो आनंदमय जो कोश है, उसमें आप कुछ भी, आपने जीभ का स्वाद लिया वो भी वहां महसूस होगा, आपने कुछ चीज देखा वो अच्छा लगा वो भी वहां महसूस होगा, है ना। आपने कुछ सुना वो भी वहां महसूस होगा, आपने किसी की बुराई करी वो भी वहां महसूस होगा। बुराई करने में तो बड़ा मजा आता है ना, गॉसिप करने में, वो भी रस। वो रस क्यों मिल रहा है हमें? क्योंकि हम लोग सत्व रज तम, तीन गुण जो है हमारे, सात्विक, रासिक और तामसिक, हम सभी लोग तीनों गुणों से बने हैं। तो कोई ये सोचे अरे भाई मैं तो ऐसा गलत सोचता हूँ, क्या करूं? बहुत सारे लोग जब उनको बताया जाता है ना तो ऐसा सोचते हैं। नहीं, इसमें आपको कोई गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है। ये मन का खेल है, ये आपका खेल नहीं है। अगर आप मन को नहीं रोकोगे तो वैसा सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, और कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट में ज्यादा ये होता है कि नहीं हम अच्छा तो बनना चाहते हैं लेकिन
बन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, ऐसे विचार आने दीजिए, बस उसको पकड़ना नहीं है, आके निकल जाएंगे वो। लेकिन जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करने लगेंगे, जब आप योगासन का, प्राणायाम का अभ्यास करने लगेंगे, तो कोई दरवाजा होता है ना जो अंदर आने के लिए, जो विचारों के लिए, वो दरवाजा आप बंद कर दोगे, अपने आप बंद हो जाता है वो दरवाजा। या अगर विचार अंदर आ भी गए तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी करेंगे, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से आप दिल्ली से जयपुर जाओगे और आपके पास बढ़िया सी कार है, लेकिन जहां पे गड्ढे आएंगे तो कार उछलेगी नहीं उछलेगी? कहीं गड्ढे हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर है और कहीं रेड लाइट है, तो आपको रोकेंगे गाड़ी को? जैसे तो ये अगर हम कॉन्शियसनेस में हैं, अगर अवेयर हैं, तो क्या होगा? रेड लाइट आई, दूर से देखा, हमने रोक दिया। अगर हमें तो ठीक है, रुकना है, ऐसी कोई विचार आए, चलो कोई बात नहीं, आएगा। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस बड़ी नहीं होगी, आपकी चेतना नहीं होगी, आपकी प्राणिक ऊर्जा बड़ी हुई नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? वहां पे रेड लाइट पे जबरदस्ती पै पै करते रहोगे, जबरदस्ती बजाओगे। जैसी स्पीड ब्रेकर आए तो दो चार मार गालियां बोल दोगे, कहीं गवर्नमेंट को दे दी या किसी को दे दी। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके उस ब्लिस बॉडी में, कारण शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तो कारण शरीर में अगर इकट्ठा हो रहा है तो भाई अच्छी चीज इकट्ठा होने दे। तो जब तक आपका ये बुद्धि जो डिसीजन देती है, इंटेलेक्चुअल बॉडी, उसको जब तक आप बड़ा नहीं करोगे, बड़ा कैसे होगी? उसमें तो सिर्फ यही डाला हुआ है कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कहीं जॉब करो, जॉब करके पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम एंजॉय करेंगे, यही डाला है। इसीलिए हम उसी पे काम करते हैं। लेकिन हम इतने ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि हम सही चीजों को नहीं जानते। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर हमने योग कर लिया तो परेशानी नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन हमारी शक्ति इतनी पावरफुल होगी कि उन परेशानियां हमें परेशानियों की तरह नहीं लगेंगी और उसके कारण आप फंसोगे नहीं। नहीं तो जैसी रेड लाइट आती है, ओहो ऐसा हो गया, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, ये इन्होंने कुछ बस एकदम से जाम हो गया है, बस सरकार की ये है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकार को कोसो नहीं, लेकिन उसको क्या करते हो? आत्मसात कर लेते हो आप, और उसके कारण फिर गिल्टी पैदा होती है। हम दूसरे की बुराई करते हैं, उसके कारण हम उसको भी अपनी ब्लिस बॉडी में इकट्ठा कर लेते हैं। तो योग जो है, योग की जो प्रक्रिया है, उसके कारण हम इन सब चीजों से दूर चले जाते हैं। दूर ही नहीं जाते हैं, आपको बहुत आनंद का अनुभव होने लगता है। और आपकी चाहे फैमिली लाइफ हो, आपकी चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, या आने वाली लाइफ हो, वो कैसी हो जाती है? अच्छी हो जाती। तो अब इसका मतलब क्या है? तो अब हमने अपने ऊर्जा को बड़ा बढ़ा के इतनी ऊर्जा बढ़ा ली है, मन को, बुद्धि को इतना बढ़ा लिया है। उससे क्या हो गया है? आपकी अब जो कार थी मारुति 800, उसको अपने BMW बना लिया। यानी कि मैंने अपनी बुद्धि को इतना सशक्त बना लिया है कि मेरे पास BMW हो गई है, जिसमें आप धक्के बहुत कम लगेंगे। रेड लाइट में तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले जो धक्के हैं वो कम हो जाएंगे, उसके अंदर रिलैक्सेशन होगा। तो BMW तो सांसारिक चीज है, उसके चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए,
उसको चलने के लिए खर्चा चाहिए, तो सब लोग करते हैं और बनाते हैं। लेकिन यहां मैं अंदर की BMW की बात कर रहा हूं, अंदर की उस शक्ति की बात कर रहा हूं जो आप ही के पास है। उसको कोई, आपको किसी से नहीं लेना, आपको सिर्फ उसको अपने आधार पे बढ़ाना है। तो जब वो शक्ति आपकी बढ़ने लगेगी तो आप कहोगे अरे आज तो बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। फिर आपके आसपास के लोग, अरे आपको तो बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन आजकल बड़े आप रिलैक्स मूड में नजर आते हो। आपको लगेगा अरे मैं पढ़ नहीं पाता था 1 घंटा, आज तो मैं 2-2 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। आपको लगेगा अच्छा ये मेरे जीवन का उद्देश्य ये था। ये सब जो शक्तियां हैं जो आपके अंदर हैं, जिसको लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचर को समझने के कारण आप इन शक्तियों को महसूस कर ले जाते हो। तो वही आज के दिन की सार्थकता है कि हम इस बात को समझें कि योग जो है दृश्यमान नहीं है, ये अदृश्य या सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी, जिसको हम बोलते हैं, उसको मजबूती देना, उसको सही चीज बताने का कार्य है। क्योंकि अगर आप सही नहीं बताओगे, दो ही चीज दुनिया में है, या तो सज्जन व्यक्ति और या दुर्जन व्यक्ति। तो जब आप सज्जन नहीं बनोगे, जब आप एनर्जी वाला नहीं बनोगे, तो क्या होगा? विचार तो चल रहे हैं, तो आप आलसी हो जाओगे। आलसी वाला व्यक्ति जो होता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता तो दूसरों को कोसता रहता है जिंदगी भर। तो बिल्कुल आपको ये करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है अरे मैं भी तो ऐसे ही हूं। आज से इसको आप समझने की कोशिश करिए कि हम, और इसीलिए योग में लिखा है कि हर कोई जना कर सकता है। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भाई जो BSc BA होगा वही इसको कर सकता है, या जो डॉक्टर होगा वही इसको कर सकता है, या जो IAS होगा वही कर सकता है, या जिसके पास 5-10 लाख रुपए वही कर सकता है। ऐसा योग में नहीं लिखा है। योग में क्या लिखा है कि जिसने मन को रोका, योगः चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है, उसको अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिल जाता है। वो व्यक्ति शांत, समृद्धि और दूसरों को प्रकाश देने वाला बन जाता है। तो अभी फिर दोबारा से हम इस बात में और पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ। 4 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको आंखें बंद रख के और स्पाइन सीधी करके करते जाना है। तो पहले मैं बता देता हूँ 4 आपके एक्सरसाइज है जो नाद मेडिटेशन में जाने के लिए। पहली वाली है जिसको हम कहते हैं कपालभाति, जो मैंने आपको अन्नमय कोश बताया। आपका पेट चल रहा है, माइंड चल रहा है, तो ये पेट को भी हल्का करेगा और माइंड में आने वाले विचारों को भी खत्म कर देगा। लेकिन लोगों क्या करते हैं, आंखें खोल के इसको करते रहते हैं। कोई 10-15-20 बार करके, कोई 50 बार करके इसको बंद कर देता है, कहता मैंने तो किया था। नहीं, इसको 300 बार 300 टाइम्स करना है। लेकिन अगर आप बीच में थक जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि लगातार 300 करना है। आप 25 टाइम्स बाद रुक जाइए, लेकिन 2-3 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और उसके बाद फिर दोबारा से शुरू हो जाइए। तो ये जो 4 प्राणायाम ये 22 मिनट्स के हैं। 22 मिनट्स का टाइमर फिक्स कर दीजिए और तब तक आप स्पाइन सीधी करके कुछ ना कुछ करते जाइए, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो एक ये हो गया जो आपका पेट ब्रीथ आउट, यानी कि एब्डोमेन इन ब्रीथ आउट, ये हो रहा है। 2 चीज करते हैं। दूसरा है श्वास लेना छोड़ना।
भ्रस्त्रिका प्राणायाम पहला वाला षटक्रम था और ये जो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम है। तो इसमें हमारा जो लंग्स है वो पूरा फूलता है और इस समय जो कोविड की समस्या से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्या से जो लोग पीड़ित हैं, ये प्राणायाम उनके लिए रामबाण है। लेकिन ये आपकी एनर्जी बॉडी को बढ़ा देता है और जैसी एनर्जी बॉडी बढ़ती है तो मन शांत हो जाता है, मन का चलना बंद हो जाता है। मन के चलने बंद होते ही अगला हम अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। आपके क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन हम बाद में इसको लेंगे, अभी हम करते जाते हैं। बहुत अच्छा है। तो अगला अब अनुलोम विलोम में बिल्कुल अभी 2 प्राणायाम थोड़ा फोर्सफुली थे। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको और इस तरह की दिक्कत है, वो धीरे धीरे करेंगे, तेज नहीं करना है उनको। और अब ये जो अनुलोम विलोम में जब हम लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, धीरे धीरे करेंगे, शांत भाव से करेंगे और उसके कारण शरीर रिलैक्स हो जाएगा। पूरा श्वास लेना है, पूरा श्वास छोड़ना है, लेकिन slowly inhale and slowly completely exhale without force, without sound। कोई साउंड नहीं होगी, आपको भी नहीं सुनाई देगी। और धीमे धीमे भरना। एक हाथ पेट में रखिए। जब आप श्वास भर रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अगला अभ्यास है हमारा 10 से वाचक का प्रणव। उस जो सृष्टि की जब हम बात कर रहे थे तो उसका निर्माण ही साउंड से हुआ है। बिग बैंग थ्योरी के कारण उसको माना जाता है। तो उसीलिए हम ओमकार के अभ्यास से, उस नाद के अभ्यास से उस इंटेलेक्चुअल बॉडी को भी वाइब्रेट करेंगे। ये जितना भी दृश्यमान शरीर है, जगत है पूरा, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ वाइब्रेशन से बना है, जिसको हम वेव कहते हैं। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है, नॉन लिविंग थिंग्स से आपके सामने लैपटॉप है उसकी अलग है, और यहाँ पेड़ की अलग है, और हमारी भी आपस में अलग अलग होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, कहते हैं अरे वो तो, उसके साथ तो मैं बात ही नहीं करता हूँ लेकिन बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बैठना। तो ये क्या है, उसके साथ आपका मनोभाव इकट्ठा हो। तो इसीलिए ये जो वाइब्रेशन है ये आपके उसको लय करता है, रिदम में करता है। तो 125 प्रकार, 125 करोड़ उपाय बताए हैं हठ योग दीपिका में मन को लय करने के लिए। उसमें से एक उपाय ये है। तो इसमें क्या करेंगे, ओम 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 ओम। अब ये जो वाइब्रेशन आप करते हैं आपके, हाँ मैं जरूर आपसे बात करूंगा, अभी आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, अभी जैसा भी आपको आता है करिए, फिर बाद में हम सीखेंगे। एक दिन ऐसा आज आया हूँ मैं, फिर हम दोबारा भी मिल सकते हैं। आप हमारी वर्कशॉप में भी आ सकते हैं, कोई ऐसी चिंता नहीं है। पहली बार हम यहाँ पे हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं यहाँ पे आया ही इसलिए हूँ कि यहाँ पे हम आपके साथ समन्वय करें। ओम ओम। अब इसमें जो ओमकार नहीं कर सकते वो भौरे की तरह गुंजन करें। ठीक है। तो अब ये 4 करना है केवल, और सब के सब ध्यान में जाएंगे और हम उसका अनुभव लेंगे, बाद में सब मुझे बताएंगे। ठीक है। अब आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, एंजॉय योर ब्रीदिंग एंड फर्स्ट स्टार्ट षटकम प्रक्रिया कपालभाति।
बहुत अच्छा। अगर कुछ लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मैं देख भी पाऊंगा आपके सुंदर सुंदर चेहरे, मैं देख पाऊंगा। बहुत अच्छा। ब्रीद आउट, ओनली ब्रीद आउट। बहुत सुंदर, करते जाइए। जब आप इफ यू फील टायर्ड देन स्टॉप एंड एंजॉय योर डीप ब्रीदिंग। और आप लंबी गहरी श्वास करते रहिए, लेकिन अपने को स्पाइन सीधा रखेंगे और अपना ध्यान, और आंखें बंद रहेंगी और अपना ध्यान उस ब्रीदिंग पे रहेगा कि जो हम कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगेगा और आपकी बॉडी भी शांत होने लगेगी। बहुत सुंदर, करते जाइए। अगला अभ्यास भस्त्रिका का। पूरा श्वास लेना है, छोड़ना है, लेकिन श्वास कहाँ भरना है? चेस्ट में। पूरा श्वास लीजिए, छोड़िए, और श्वास जो है आप चेस्ट पे भरिए। हाँ, अभी आपको बताएंगे। आप श्वास भरिए, छोड़िए, लंग्स लंग्स को पूरा फुलाइए, अपने फेफड़े को पूरा फुलाइए और पूरा छोड़ दीजिए। तेजी से श्वास लेना है। पहले श्वास भरिए। पहले में क्या था? केवल श्वास को छोड़ना था, लेकिन इसमें श्वास को भरना भी है। इनहेल फोर्सफुली and exhale completely. Inhale forcefully and exhale completely. बहुत अच्छा, करते जाइए। बहुत सुंदर। फिर रुक जाइए, थक जाते हैं थोड़ा, 10 के बाद, 15 के बाद, कोई बात नहीं। फिर से दोबारा से। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है और राइट साइड से श्वास को छोड़ देना है। लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये जो लगातार हम कर रहे हैं, इससे हम अपने मन को रोक सकते हैं, मनोमय कोश को मजबूत बना सकते हैं। पूरा धीरे धीरे श्वास भरते जाइए।
बहुत सुंदर। अगला अभ्यास ओमकार। ओम 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 ओम। देखिए धीरे धीरे सब लोग अब उस ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके हैं। रुकना नहीं है। मन कहेगा अरे छोड़ो, लेकिन मन को आपको सर्वेंट बना के रखना। उससे कहेगा चुप रहो भैया, 5 मिनट तक मुझे करने दो सारा कुछ। हाँ। ओम 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 ओम। जाने दें उस डीप रिलैक्सेशन में। और उस वाइब्रेशन को आप महसूस करते रहें। तो ये वाइब्रेशन जो है आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है। अब आप अनंत आकाश की ओर चलिए। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। हमारा जो नाद है हमें सिखाता है कि केवल जो ये सेंस ऑर्गन है, इनसे ही हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। हम इसके बियॉन्ड जाके भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ट्राई टू लिसन बर्ड साउंड्स, waterfall sound, pure water river, and differentiate the bird sound। और हम धीरे धीरे और डीप मेडिटेशन में चलते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है कि अब 80% तक बच्चे करने लगे हैं, या जो भी प्रतिभागी हैं वो कर रहे हैं। साइलेंस में चली जाइए। साइलेंस को महसूस करें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लगा लें। Breathe in 20, breathe out 20। जाने दें। केवल श्वास जो आपकी चल रही है उसको अपोजिट काउंटिंग करनी है। जाने दें उस अनंत आकाश की ओर। वहां पे हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। Breathe in 15, breathe out 15।
Breathe in 10, breathe out. जाने दें उस deep. Breathe in 9, breathe out. Breathe in 7, breathe out 7. Breathe in 4, breathe out 4. Breathe in 2, breathe out 2. अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, उनका ध्यान। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। सभी का प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करेंगे और हाथों में जो एक ऊर्जा का संचार हुआ है उसको अपने आंखों पे लगाइए। अपने पाम एरिया को आंखों पे लगा के थोड़ी देर रोकिए, बंद रखिए। गर्मी, उस गर्मी को फील करिए, कितना अच्छा लगता है। देखिए, फिर से करिए एक बार। अपने आंखों पे लगा के उसको थोड़ी देर रखिए। वेलकम बैक। धीरे धीरे वापस आ जाइए। आप अपना अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जी पूछिए। जी सर। हाँ जी। जी सर, सबसे पहले सर गुड आफ्टरनून, और बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें सारी चीज़ों के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला तो ये कि एक और योग का तरीका होता है जिसे हम भ्रामरी कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर मान्यता ये है कि उसे करने से दिमाग तेज़ होता है और जो हमारा फोकस होता है वो बढ़ता है चीज़ों को लेकर। तो वो कैसे करते हैं और वो किन किन चीज़ों में हमें सहायता देता है, ये बताइए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ध्यान लगाने के लिए बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं कि आप जब ध्यान लगाते हैं तो कोई सफ़ेद चीज़ को सामने रखिए, उसे ही देखते रहिए, या फिर आंखें बंद कर कर आप अपने मन में अपने प्रभु की मूर्ति को याद कीजिए, या ओम का उच्चार मन में कीजिए। सर कौन सा ज़्यादा कारगर रहता है हम विद्यार्थियों के लिए या किसी के लिए भी, मैं इसके विषय में जानना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। भ्रामरी जो है वो भी नाद योग का ही वो है। जैसे हम 7 वॉल्यूम में इस अपने कोर्स को कराते हैं। 3 दिन की हमारी वर्कशॉप होती है, 2 घंटे की, 3 दिन की, पहला वॉल्यूम। और आगे के वॉल्यूम में हम इस भ्रामरी को भी कराते हैं। ये भ्रामरी जो है इसमें आप अपने अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेते हैं, अपनी दोनों अंगुलियों से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपनी सबसे बड़ी
जो आपकी फिंगर है उससे आप नाक को हल्का सा प्रेस करते हैं और फिर मुंह को भी, यानी कि आपकी सारी चीजें बंद रहती हैं। और फिर हम भौरे की तरह गुंजन करते हैं, तो वो जो गुंजायमान जो साउंड है आपके पूरा सर पे वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। और एकदम सही आपने बताया, ये आपकी मेमोरी के लिए, आपके कंसंट्रेशन के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए, मन की क्षमता बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर दूसरा कि आपने जो कहा कि क्या ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं, तो इसीलिए हम ये ना खोजें कि हमें कहाँ कहाँ जाके करना है। आप किसी भी ध्यान को करना शुरू करें, सभी सरल है और सभी कठिन है, अभ्यास महत्वपूर्ण है। तो आज आपको अगर ये पसंद आया, इसी को करना शुरू कर दीजिए। कहीं और जाइए, उन्होंने कोई और अभ्यास किया, उसी को बस, लेकिन उसको रेगुलर करना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया। जैसे हम घरों की पेंट लगाते हैं घरों को, लेकिन पेंट भी 10 साल के बाद खराब हो जाता है। लेकिन हमारा जो शरीर है उसमें हम रेगुलर करेंगे ध्यान, भी कभी छूट जाएगा अलग बात है, तो हमें फायदा होगा। तो इसलिए कोई भी आप करिए, ऐसा कठिन और सरल कोई नहीं है, अभ्यास की बात है। जितना अभ्यास करेंगे पाएंगे। अगर आज आपको अच्छा लगा तो नाद मेडिटेशन का करिए। तो ये अवसर हमें मिलता रहता है, अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए जी। और किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था सर। हाँ बोलिए। सर, योग करने का ही मन नहीं करता तो उसके लिए क्या करें? नहीं, मन तो करना पड़ेगा ना मन के लिए तो इसीलिए ये जो देखो आज ये कार्यशाला रखी, इसीलिए तो रखी है। इसीलिए तो योगा डे मनाया जा रहा है कि आप समझो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए खाना है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए खेलना है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए पढ़ना है, वो भी हम जबरदस्ती थोड़ी करते हैं, मजबूरी में करते हैं। तो इसीलिए जब साफ एक बार आप शुरुआत करने लगेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, आप कुछ ना करो किसी चीज के। अगर सबसे पहले तो योग को समझो। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं कि शरीर हमारा बने रहे। हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम आगे कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई योग से जो हम पढ़ रहे हैं बिना योग करे वो आपको 5 घंटे में याद होता है, जब हम योग करके पढ़ते हैं वो 2 घंटे में याद हो जाता है, और फिर आप भूलते भी नहीं है उसको। सर, जैसे हम खाना खाकर वॉकिंग करते तो वो भी तो मतलब एक्सरसाइज के अंडर में ही आएगा, मतलब खाना को एक्सरसाइज है, लेकिन वो डाइजेस्ट योग, करने के लिए। वो एक्सरसाइज के अंदर है, लेकिन वो योग नहीं है, वो एक्सरसाइज है। योग क्या होता है, जिसमें हमारा मन भी लगे रहे, हमारा शरीर भी लगे रहेगा, और उसको और डीप तक लेके जाए। जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने, जिन्होंने किया होगा, सबने तो नहीं किया मुझे मालूम है, जिन्होंने किया उन्होंने कुछ मैसेज भी किए हैं मुझे कि अच्छा लगा है। और हम सोचेंगे कि योग केवल हम सुनते रहेंगे तो फिर वो दिन ही नहीं आएगा कभी। तो मन को लगाने के लिए हम छोटे छोटे अभ्यास शुरू करें और अपने लॉजिकल माइंड में ये बताएं कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं, तो शुरू हो जाएगा। हाँ जी, और कोई? गुड आफ्टरनून सर, सुरभि बोल रही हूँ जी सर। आपने कहा कि 300 बार हमें प्रयास करना चाहिए योग का, नाद योग में जाने से पहले, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं और भ्रामरी प्राणायाम, सॉरी, भर्त्सिका करते हैं, तो 300 बार आपने कहा, 25-25 का, तो वो पूरे दिन भर में या फिर मतलब कैसे करें? बिकॉज 300 बार एक तो समय उतना नहीं मिल पाता है, और कई बार होता है कि उतना नहीं कर पाते हैं, शरीर उतना आप
मतलब किसी भी तरह से, किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है, तो क्या करना चाहिए फिर? हमें 22 मिनट निकालने हैं। ये पूरा जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई ये 22 मिनट की है और वो निकालने पड़ेंगे आप। 22 मिनट की टाइमर फिक्स करिए और ये 4 अभ्यास करना शुरू करिए। रात को, दिन में, दोपहर, जो मर्जी। खाली पेट होना चाहिए 3 से 3.5 घंटा। क्योंकि दो चीजें हैं, मन को साधने के लिए समय तो देना पड़ेगा और उसके बाद जैसे आज मैंने कराया, क्या हमें अच्छा लगा? जी अच्छा बिल्कुल। लगा तो इसका मतलब हमारे लिए अच्छी बात है। जी। तो ये आप अपना समय कोई भी तय कर सकते हैं। रात को सोने से पहले कर सकते हैं, सुबह उठने से कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि किस दिन समय आएगा, उस दिन नहीं आएगा। ये 300 जो है 5 मिनट में भी हो जाते हैं। 300 पहुंचाने जरूरी नहीं है। कपालभाति 300, भ्रस्तिका जो दूसरा वाला किया था वो 50 से 100, जी। अनुलोम विलोम भी करीब 25-30 हो जाते हैं, 50 तक हो जाते हैं और लास्ट में ओमकार 21 बार। ये जी। क्रम है। अब क्या है कि आप 300 नहीं कर पाए, 200 कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन 22 मिनट नहीं हिलना है आपको। 22 मिनट एक तरीका है जिसमें हम ध्यान में जा सकते हैं। और सर जैसा अभी एक हमारे स्टूडेंट ने भी पूछा था कि कई बार पेट में दर्द सा महसूस होता है, या जो लोग जिनकी सर्जरी हुई है वो अगर इसका अभ्यास करें तो उन्हें भी वहां पे मतलब खिंचाव महसूस होता है, तो क्या उनके लिए कार्य ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस अवस्था में करनी चाहिए? हाँ, पेट में दर्द होता है इसका मतलब पेट में कुछ इन्फेक्शन है, पेट में हो सकता नहीं, है। खिंचाव सर, खिंचाव सा महसूस होता है, जैसे क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव, या फिर जैसे सर्जरी के बाद अगर ये सब अभ्यास को करने से तो वो दर्द एक फील होता है, तो उस सिचुएशन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑपरेशन के 3-4 महीने के बाद हम कर सकते हैं, कंडीशन देख के। 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो खिंचाव हो रहा है जी। वो हमारे फायदे के लिए है। वो 2-4 मिनट, 5 मिनट के बाद चला जाता है। ओके। और और फिर एक ये जो आपने कहा कि आपका ये कोर्स भी होता है, तो इसको अगर करना है और कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं? हम लोग ये हर महीने करते हैं, तो आप लोगों को उसका गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, उसको जी आप भर के आप कर सकते हैं, आ सकते सर, तो वो अगर आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी इसको करना चाहते हैं। हैं। तो जी। उसके लिए मैं चंद्रा मैम को, जिस समय अभी तो फॉर्म बना नहीं है, अब अगले महीने का फॉर्म बनेगा। तो हाँ जी। सर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इसका 1 वीक का पूरा कोर्स कराना चाहूंगी बच्चों के लिए प्लस टीचर्स के लिए, जिनमें आपने जैसा सुझाव दिया था 100 रुपीज एवरी डे का जो उनसे चार्जेस लेना है, उसके साथ मेरे 2-3 प्रश्न है नवदीप जी आपसे। जी। एक मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मुझे कभी कभी जो व्यक्तिगत मैं फील करती हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी जो ऊर्जा है वो बहुत बहुत अधिक ऊर्जावान फील करती है, और उसमें मेरी एक्टिविटीज से मुझे खुद फील होने लगता है कि बहुत अधिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो ऐसे में उस ऊर्जा का सही उपयोग है, उसको कंट्रोल कैसे करें? पहला प्रश्न है, पहले इसका जवाब मुझे मिल जाए। देखिए, ऊर्जा हमें हो रही है तो उसके बाद अफर्मेशन बनाना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो एफर्मेशन मतलब कि हमारा कोई उद्देश्य होगा। अगर हमारा उद्देश्य है तो बहुत अच्छा है, फिर तो ऊर्जा सीधे ट्रांसफर हो जाएगी उस उद्देश्य के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस एम के लिए। नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन ये एनर्जी है, ये कन्वर्ट होती रहती है, खत्म नहीं होती। हाँ, जब आपके पास उद्देश्य नहीं है तो वो फिर नकारात्मक साथ में चली जाएगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये मेरी रीडिंग है, हो सकता है ऐसा ना हो, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या लोगों के व्यक्तित्व के साथ नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है क्या? क्योंकि मैंने ऐसा बहुत महसूस किया है
कि कई लोगों के साथ मिल करके मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस होता है और बहुत खुशी मिलती है उनके चंद बातचीत से ही या उनके बिहेवियर से ही। और कई लोगों के साथ चाहे बातचीत हो या ना हो, बहुत नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, ऐसा होता है क्या रियल में? बिल्कुल होता है, क्योंकि हम लोग सत रज तम से बने हैं, 3 गुणों से हम बने हैं, हर कोई जना, मैं भी, आप भी, या कोई भी। तो इसीलिए सबके अंदर ये ऊर्जा होती है। किसी के में सत्व ज्यादा होता है, किसी में तम ज्यादा होता है, रजो होता है। लेकिन जो हम 3 दिन की वर्कशॉप में ये बताते हैं कि बहुत सारी चीजें हम छोड़ नहीं सकते, बहुत लोगों को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमें अपने में काम करना होता है। हम इसमें ज्यादा ध्यान ना देके कि दूसरा जना क्या है, कैसा है, ये हम सिखाते हैं। क्यों? जिस दिन आपको ये मालूम चल जाएगा भाई कि ये ऊर्जा भी है और आपके काम के लिए जरूरी है, तो आपका माइंड चेंज हो जाता है। नहीं तो हम सामान्य लोगों की तरह ही लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं। एक आतंकवादी में भी बहुत ऊर्जा होती है, एक सज्जन व्यक्ति में भी बहुत ऊर्जा होती है। सर ज्यादा योग करने से कोई नुकसान भी है? जैसे कि अगर 1000 बार कोई कपालभाति ज्यादा करने से, जैसे ज्यादा करने से कोई नुकसान है? नहीं, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा करने की आवश्यकता क्या है जब आपको फायदा कम में ही हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि पहले आप 22 मिनट से शुरू करिए। सर मेरे को एक चीज और पूछना है कि जो हम व्यायाम करें जैसे वज्रासन, मंडूकासन, मुझे आपके कराने से ये समझ आया कि एक तो जो आज आपने व्यायाम या जो भी सांस से संबंधित एक्सरसाइज कराया, ये हमारे मन को केंद्रित करने के लिए या मन को मतलब संतुलन में रखने के लिए है, या पता नहीं आपको एग्जैक्ट वर्ड तो आप ही दे पाएंगे। और जो हम एक्सरसाइज करते हैं जैसे वो बैठ करके या खड़े होकर के करते हैं, वो शायद शरीर को फिट रखने के लिए, शरीर और मन का संतुलन बनाने के लिए क्या है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। सब सारी चीजें जरूरी हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए और आराम से करिए, आनंद से करिए। स्थिर सुख आसनम, आसन जो है सुख पूर्वक रहने की हुआ। तो हर चीज का फायदा है, करना जरूरी है। बस आप 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, करेंगे तो उसका फायदा होगा। और ये जो सारे हमारे प्रश्न आए हैं, ये भी इसलिए आए हैं कि हमारे मन में कुछ है, लेकिन ये प्रश्न ही रह जाएंगे जब तक हम करेंगे नहीं। क्योंकि योग अच्छा है, योग बहुत अच्छी बात करते हैं, ऐसा करने का हमारा बहुत समय निकल गया। अब हमें योग करना है सब लोगों को, ठीक है? तो वो हम सबको करना है और बहुत अच्छा है। अब मेरा दूसरा एक और जगह मुझे जुड़ना है, तो आपका बहुत अच्छा लगा, सबने क्वेश्चन भी पूछे और हम सब लोग जुड़ेंगे। नो डाउट योग की जो गहराइयाँ हैं उसको महसूस करेंगे। तो सुरभि आप धन्यवाद ज्ञापन कर दो। जी मैम एक्चुअली सर का धन्यवाद ज्ञापन करना ये बहुत छोटी सी बात हुई, क्योंकि सर ने हम लोगों को इतने महत्वपूर्ण चीज बताया कि सर धन्यवाद नहीं कहूंगी, बल्कि आशा करूंगी कि आप और बार हमसे जुड़ें और इसी तरह हम वो जो कोर्स जिसकी मैम बात कर रही हैं वो हमें ज़रूर करवाएं। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का इंटरनेशनल योगा डे वाकई में एक बहुत ही सफल दिन था और सर इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। जिस लगनता से और जिस पेशेंस से आपने हमारे स्टूडेंट्स को और हम सबको नाग योग के बारे में बताया और बहुत ही सरलता से बता दिया कि किस तरह से हमारा शरीर उसी तरह से बनेगा जैसा हम उसे चाहते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था और मैं सर के साथ साथ चंदा मैम का भी बहुत शुक्रिया कहूँगी, जो मैम ने सर को आमंत्रित किया और हमें ये मौका दिया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण
सत्र हम लोग अटेंड करें, और ना कि सिर्फ हमारे कहते हैं कि कृत्रिम सुंदरता को, बल्कि आंतरिक सुंदरता को ध्यान में रखते हुए और उसे और खूबसूरत बनाए। इस नोट पे, और सारे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे को सुन करके नहीं बल्कि उसका अभ्यास करके सेलिब्रेट किया। और ये हर दिन हमारा योगा डे ही होगा जिसमें हम लोग अपने जीवन से 22 मिनट निकालेंगे। और मैं तो ये भी चाहूंगी कि हर 22 मिनट का हम लोग एक छोटा सेशन कर सकते हैं, ताकि हम लोग इस तरह ग्रुप में करें, क्योंकि कोई भी काम अगर सब लोग एक साथ मिलजुट करके करते हैं, वो काम बहुत ही सरल हो जाता है, साध्य हो जाता है और बहुत ही सुंदर निखर के आता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। मैं भी आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ जोड़ने के लिए, और हम दोबारा से जुड़ेंगे। ये एक प्रक्रिया है बदलाव की, ये एक प्रक्रिया है आनंद की, एक प्रक्रिया है सुखद अनुभव की, जो हम सब लोगों ने किया है। और हमारा प्रारब्ध से ही कुछ ना कुछ संपर्क होता है, इसीलिए हम बार बार आपस में जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच आप मिरांडा कॉलेज में जोड़ने के लिए, और ज़बरदस्ती मुझे आप अपने परिवार के साथ, वो जो अनकंडीशनल लव के साथ आप लोग मुझे जोड़ते हैं, उसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। प्रिंसिपल मैम हमारे कर साथ दें। हैं। गुड आफ्टरनून मैम, a very happy International Yoga Day मैम। यस, सॉरी मैं आई जॉइन लेट, बट मैं कैसे छोड़ सकती हूँ जो प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैंने सुना, पूरा सुन नहीं पाई, लेकिन अगेन आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। एंड जो भी आप लोग प्लान करें और जिस तरह से हम जुड़े रहे सर के साथ, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और एक तरह से आज के दिन जो इंटरनेशनल योगा डे विच इज कमिटेड टू वेलनेस इन एवरी सेंस, एक मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ का जो बैलेंस आप बना रहे हो, और इक्वानिमिटी ग्रेस के बारे में जो बातें रखी, जिस तरह से सरलता से सर ने सारे आंसर्स किए, बहुत अच्छा है। प्लीज कैरी फॉरवर्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चंदा मैम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू चंदा, थैंक यू डॉक्टर सागर। Thank you ma'am, thank you for joining and gracing our event ma'am, thank you. So I finally thank everyone for joining us, and wish you all the best and have a good day. Thank you ma'am, thank you everyone.